Welcome to all. Myself Ravindra Gupta. Today we will learn about Maharashtra Board updated 2020 12th biology chapter number 3 inheritance and variation. So starting with the name of a chapter, what is the meaning of inheritance? Inheritance simply means transfer of genetic information from generation to generation, that is from one generation to next generation. ओके इसका मीनिंग क्या होगा? सो एग्जांपल, अगर मैं कोई एग्जांपल ले रहा हूँ, सो आपको पता ही होगा कि अगर किसी के घर पे अगर बेबी या तो बेबी का बर्थ होता तो उसको देखने आने वाले कुछ कमेंट करते हैं, और वो कमेंट क्या होता है, तो वो कमेंट ज़्यादातर ऐसे होता है कि इसका नोज़ पैटर्न इसके पापा से मैच हो रहा है, इसका स्किन पैटर्न इसके मॉम से मैच हो रहा है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कलर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट पैटर्न? सो उसका मीनिंग होता है दैट इज़ कॉल इट एज अ कैरेक्टर्स. दिस इज़ कॉल इट एज अ कैरेक्टर. सो सिंपली मीन्स दैट ट्रांसमिशन ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, मतलब उनके पापा के जनरेशन से उनके चिल्ड्रन के जनरेशन में ट्रांसमिट होना. दिस ट्रांसमिशन of a character is called it as a inheritance. Okay, so all of you clear what is the meaning of inheritance? Then the second definition is a variation. What is the meaning of variation? Difference between their parents and their offspring or siblings. Difference between their parents and their offspring or a sibling. What is the meaning of offspring? Offspring means a child, sibling means brother or a sister. Okay, sometimes there is not 100% matching of a चाइल्ड कैरेक्टर विद देयर पेरेंट्स. उसके चिल्ड्रंस का जो कैरेक्टर होता है वो पूरा का पूरा 100% उनके दोनों भी पेरेंट्स से मैच नहीं होता है. सो दैट डिफरेंट कैरेक्टर, जो अलग कैरेक्टर चिल्ड्रंस में या तो उनके ब्रदर में या तो उनके सिस्टर में जो भी जनरेट हो रहा है, दैट कैरेक्टर, दिस इज कॉल इट एज दैट डिफरेंस इज कॉल इट एज अ वेरिएशन. मतलब कि एक जनरेशन में, ओके, अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया, सो कुछ एक डिसीज़ है जो कि उनके पेरेंट्स में नहीं है बट उनके चिल्ड्रन में वो ट्रांसमिट हो गया. सो दैट डिसीज़ इज कॉल इट एज अ वेरिएशन. This disease is called it as a variation. Okay, so in today's topic, that is the third number chapter, inheritance and variation, will consist of so many topics. So इसके अंदर हमको देखना है that is a 3.1 chromosome and mechanism of inheritance, 3.2 genetic terminology, 3.3 Mendel's law of inheritance, Mendel's के लॉ के बारे में स्टडी करना, 3.4 back cross and a test cross, how the farmers are checking their seed, whether it is a dominant or it is a higher variety or it is a lower variety of seed. Then 3.5 deviation from Mendel's finding. Okay, all the crossing are not follow Mendel's law, so some of them are called it as a deviation of a Mendel's finding. Then 3.6 chromosomal theory of inheritance, 3.7 chromosomes. Here we will study about the moreover about the human body chromosome numbers. Then 3.8 linkage and crossing over, 3.9 autosomal inheritance, the disease or something which will be transmitted from one generation to next generation with the help of autosome of our chromosome. Sex link inheritance, there are some of the diseases in our body which is transmitted from sex chromosome, that is called it as a sex link inheritance. Sex determination, here we will study about the human body sex determination, that is a XX and XY type of sex determination. Then there is an example of bird sex determination and honeybee haplodiploid sex determination. Then 6.12, that is a genetic disorder. In this lecture, we will study about 3.2 genetic terminology. Genetic terminology consists of so many definition, and this definition is a base of this chapter. As like a maths में जैसे
प्लस और माइनस अगर नहीं आ रहा है तो आपको मैथ्स नहीं आएगा। वैसे ये जो हम लोग आज पढ़ने वाले इस टॉपिक में, दैट इज़ अ 3.2 जेनेटिक टर्मिनोलॉजी विच विल कंसिस्ट ऑफ सो मेनी डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आगे के पूरे चैप्टर्स के लिए। ओके, सो फर्स्ट डेफिनेशन वी विल सी, दैट इज़ अ कैरेक्टर्स। What is the meaning of character? Specific features of an organism is called it as a character. Specific features of an organism is called it as a character. Example, height of the stem. What is the meaning of organism? Those the living being which is a living, okay, those are organism, and those the things we are living, so that is called it as an organism. And in that organism, specific features means a phenotypical thing, means phenotypically if we see any plant, अगर हम लोग कोई प्लांट को देख रहे हैं तो उस प्लांट के अंदर उस प्लांट का हाइट कितना है, दैट इज हाइट ऑफ द स्टेम, एक कैरेक्टर हो गया। देन अदर एग्जांपल अगर मैंने ले लिया तो शेप ऑफ द सीड, उस प्लांट के अंदर जो भी सीड है, सीड का शेप क्या है। कलर ऑफ द सीड, उस सीड का कलर क्या है। Flower position, whether it is a exile, whether it is a terminal, that is call it as a characters. The next definition here, here we will study, that is a trait. What is the meaning of trait? A trait simply means inherited character and its detectable variant. Here there is a two new word, that is call it as a inherited, and the second one is call it as a variant. Variant simply means variety in that character. Inheritance means a transmission. So what is the meaning of that? The transmission of a character from one generation to next generation. But कौन से कैरेक्टर? सो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होगी उस ऑर्गेनिज्म में, प्लस उस कैरेक्टर के अंदर जो भी आपका डिटेक्टेबल वैरायटी है, that variety or a variant is called it as a trait. Simply example, if I am taking a character, अगर मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है कैरेक्टर का, like a height of the stem. So height of the stem, either उस प्लांट का हाइट या तो टॉल रहेगा या तो ड्वार्फ रहेगा. So this variety in that character is called it as a trait. अनदर एग्जाम्पल, शेप ऑफ द सीड, जो मेंडल ने स्टडी किया, तो शेप ऑफ द सीड, जैसे कि अगर मैंने पी वटाने का अगर मैंने सीड ले लिया, सो वो सीड आइदर वो तो राउंड होगा या तो फिर वो व्रिंकल रहेगा. देन फ्लावर कलर, दैट इज वाइट कलर, वॉयलेट कलर, देन येलो कलर, रेड कलर, these are nothing but the trait. So what is the meaning of trait? An inherited, that is a transmitted character from and its detectable variant. So the character which is transmitted from one generation to next generation, plus in that there is a variety in that character, is called it as a trait. The third definition we will study, that is a factor. Factor is nothing but the gene, but this word was given by Mendel. That time there is a no discovery of a gene. So gene and factor is nothing but the same thing, but there is a, at the time of Mendel when discover a word factor, there is a no chromosome and no word that is a gene. मेंडल को ये नहीं पता था कि जीन क्या होता है या तो फिर क्रोमोसोम क्या होता है. सो मेंडल ने एट द टाइम जब उन्होंने स्टडी किया था मेंडल ने, तो उन्होंने 1860 में इसको क्या नेम दिया था, दैट इज कॉल इट एज अ फैक्टर. जीन को ही उन्होंने नेम दिया था, दैट इज कॉल इट एज अ फैक्टर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, सो देखो यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है, फैक्टर. फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. ओके, फैक्टर इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी? Again, heredity means inheritance, that is a transmission of a character from one generation to next generation. Okay, then a particle present in an organism which is responsible for inheritance and expression of a character means ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी पेरेंट्स के अंदर या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ एक पार्टिकल है. मेंडल को ये नहीं पता था कि वो पार्टिकल क्रोमोसोम या जीन है, बट उस टाइम मेंडल को नहीं पता था तो उन्होंने वर्ड को नाम दिया था फैक्टर. सो अ पार्टिकल प्रेजेंट इन एन
organism which is responsible for inheritance and expression of that character. मतलब हम लोग जो बोल रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है, वो स्किन कलर है, हाइट ऑफ द स्टेम है, देन कलर ऑफ द सीड है, बट ये जो पार्टिकल कौन ट्रांसमिट कर रहा है? ऑर्गेनिज्म के अंदर, पेरेंट्स के अंदर कुछ एक पार्टिकल है जो कि उस जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट करा उस कैरेक्टर को, एंड द नेम ऑफ दैट फैक्टर और अ पार्टिकल, ओके, नेम ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल इट एज अ फैक्टर अकॉर्डिंग टू मेंडल. मेंडल के हिसाब से वो जो पार्टिकल था जो ऑर्गेनिज्म में होता है विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल इट एज अ फैक्टर. The second thing, factor is passed from, okay, second thing, that is a factor is passed from one generation to next through gametes. फैक्टर का ट्रांसमिशन कैसे होगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में? सो अकॉर्डिंग टू मेंडल द फैक्टर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ गैमेट्स. अगर मैंने एक एग्जांपल ही ले लिया कि हमारा बॉडी का फॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी कैसे फॉर्म हो रहा है, सो ह्यूमन बॉडी, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म विच विल फॉर्म बाय fertilization, it is formed by a single cell, and that single cell is nothing but the zygote. वो सेल क्या है? zygote है. This cell is called it as a zygote. So how the zygote is formed? That is a union of male and female gamete. मेल और फीमेल गैमेट का जब यूनियन होगा, that is called. So male and female gamete means male gamete is nothing but the sperm, and the sperm and an egg, both of them consist of a nucleus, और nucleus के अंदर क्या है? So according to a Mendel, factor is passed from one generation to next generation through a gamete. So सिर्फ गैमेट ही रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, यानी कि एक चिल्ड्रन का फॉर्मेशन होना तो गैमेट होना बहुत ज़रूरी है, रॉ मटेरियल, और उस गैमेट के अंदर ही क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अ मेंडल देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पार्टिकल विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ फैक्टर. सो फैक्टर इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन थ्रू अ गैमेट्स. गैमेट के वजह से जो फैक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होगा. देन द थर्ड वन, ओके, देन द थर्ड वन क्या बोला है? देखो, फैक्टर डिटरमाइन अ जेनेटिकल, फैक्टर डिटरमाइन जेनेटिकल character of an organism. Genetical means if in our body there is a presence of a gene that is a insulin, so हमारे बॉडी में वो क्या फॉर्म करेगा? that is called it as a इंसुलिन का फॉर्मेशन करेगा. सो जेनेटिकल कैरेक्टर फैक्टर जो भी है ये हमारे जीन्स के अंदर, जो क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीन्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ जेनेटिकल कैरेक्टर को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट करेगा. देन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अ जीन. जीन इज नथिंग बट द सेम थिंग. जीन और फैक्टर दोनों भी थिंग सेम है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? सेम थिंग एट द टाइम ऑफ मेंडल ने जब भी डिस्कवरी किया था उस टाइम मेंडल को जीन नहीं पता था. इसका डिस्कवरी 19 सेंचुरी 1890 के लगभग हुआ है, जो कि मेंडल के डिस्कवरी के बाद हुआ था. सो उसके बाद ये डेफिनेशन है. सो जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए which is responsible for the inheritance and expression of that trait. Here again two or three different words, that is a segment of DNA. Then the second thing, inheritance and expression of a trait. So what is the meaning of a, so in a simply means, okay, in a simply means DNA is a, okay, gene is a segment of DNA, because DNA is a too much bigger. In that, gene is a some part of a, you can see in that diagram, DNA is nothing but a, so in DNA there is a some part that is a gene 1, gene 2, gene 3, okay. So some part of a DNA which is responsible for forming a one type of a protein, एक छोटा सा पार्ट है DNA का जो कि सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, that is called it as a gene. So a segment of DNA which is responsible for inheritance. What is the meaning of again inheritance? Transmission of character from one generation to next generation plus expression of that trait. एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट मतलब क्या? तो एग्जांपल अगर मैंने हमारे बॉडी में इंसुलिन जीन है, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन जीन विल फॉर्मिंग अ इंसुलिन प्रोटीन, तो वो हो गया उसका एक्सप्रेशन ऑफ दैट कैरेक्टर. सो सिंपली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन? तो जीन क्या है? जीन ये डीएनए, ओके, डीएनए इज
too much bigger. So in that DNA there are small part which will forming a one type of a protein. So that small part which forming a one type of a protein and plus that small part is transmitting, वो part एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर ट्रांसमिट हो रहा है, so that is called it as a gene. So next definition is allele. What is the meaning of allele? Two or more alternative form of a given gene are called allele. Two or more alternative form of given gene are called alleles. Then they occupy identical loci on a homologous chromosome. So what is the meaning of allele? Allele is nothing but a some sort of a gene. allele का मतलब ही जीन ही है, बट जीन के अंदर फिर से वैरायटी आ जाएगा. जीन के अंदर फिर से क्या हो जाएगा, वैरायटी आ जाएगा. सो इन दैट जीन देर इज अ वैरायटी और टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, दैट इज कॉल्ड इट एज अ allele. If I am taking a diagrammatically, so all you know that is a cell, human body, that is a cell. We are eukaryotic cell having a nuclear membrane. In that nuclear membrane there is a chromatin form of a chromosome, and you know that there is a 46 chromosome is a present in a human body. If I am taking an example of a human, and in that 46 chromosome we also call it as a 23 pair of chromosome. So what is the meaning of 23 pair of chromosome? We have a 46 chromosome, but out of that we have each and every chromosome 2 copy. If I am taking a type of chromosome, so we have a 23 different type of chromosome are present in our body. Out of that each and every chromosome have a 2 copy. Example, chromosome number 1 2 copy, chromosome number 2 2 copy, chromosome number 3 2 copy. Likewise 23 number chromosome have consist of a 2 copy. Means 23 chromosome is come from our body, from our parents, that is one parents father side from sperm, and 23 chromosome is come from our maternal side, that is the mother side from egg. So each and every chromosome, for a chromosome number 1, chromosome number 2, chromosome number 3, 22 autosome we have a 2 कॉपी. हमारे पास हर एक क्रोमोसोम का हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम के 2 कॉपी है. सो इन दैट क्रोमोसोम हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि क्रोमोसोम के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इट एज अ जीन. सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. अब देखो यहाँ पर ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, अगेन ये क्रोमोसोम नंबर 1 है. एक हमारे फादर साइड से आया है और एक हमारे मदर साइड से. अगर मैंने फादर साइड का क्रोमोसोम लिया तो वहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर, ओके, यहाँ पर 1 क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ सो मेनी जीन. एक क्रोमोसोम में बहुत सारा जीन है और उस जीन के अंदर, ओके, उस जीन के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए, जैसे कि अगर मैंने हाइट ऑफ द प्लांट ले लिया, तो हाइट ऑफ द प्लांट जो मेंडल ने स्टडी किया था उसके लिए इस क्रोमोसोम में कैपिटल टी करके जीन यहाँ पर है. सेम पोजीशन में दूसरे क्रोमोसोम है. पोजीशन यानी क्या होगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमको देखना है, यानी कि कितने न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अंदर है. 100 है तो 100 KB बेस पेयर के वहाँ पर इसका लोकेशन हो गया. सो दैट पोजीशन इज कॉल्ड इट एज अ लोका. और ये दोनों भी क्रोमोसोम नंबर 2 है हमारे बॉडी में. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ईच एंड एवरी क्रोमोसोम वी हैव अ 2 कॉपी, और उस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसका एक स्पेसिफिक पोजीशन है. दैट पोजीशन इज कॉल्ड इट एज अ लोका. उस पोजीशन को क्या बोलना है, लोका. एंड दैट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, देखो अभी ये यहाँ पर अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पर पेरेंटल साइड फादर से जो क्रोमोसोम आया वहाँ पर कैपिटल टी अलील है. कैपिटल टी जीन यानी हो गया वो टॉल के लिए, और जो स्मॉल टी हो गया दैट इज फॉर अ डॉफ. सो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इन अ होमोलोगस क्रोमोसोम. ओके, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक कैरेक्टर के लिए जीन के अंदर जो वैरायटी है दैट इज कॉल्ड इट एज अ अलील. एंड दैट अलील आर ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल लोकाई, यानी कि सेम पोजीशन होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर सिमिलर पोजीशन में. मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 के अंदर 100 KB बेस पेयर पर है तो दूसरे क्रोमोसोम में भी 100 KB बेस पेयर पर रहेगा वो जीन. और दैट जीन एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ दैट जीन इज कॉल्ड इट एज अलील्स एंड अलीलोमॉर्फ्स.
Now we will see next definition, that is dominant. What is the meaning of dominant? It is an allele that express itself. It is an allele that express its trait even in presence of an alternative allele. मीनिंग क्या हो रहा है कि जो एक अलील है या तो एक जीन है जो कि दूसरा कोई भी अलील है लेकिन खुद को ही एक्सप्रेस होने देगा, दैट अलील इज कॉल्ड इट एज अ डोमिनेंट अलील. एग्जाम्पल, दैट इज इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि अलग अलग अलील एक जगह आ गए एक ऑर्गेनिज्म में, फिर भी उसमें से जो अलील खुद को एक्सप्रेस करा है दैट इज कॉल्ड इट एज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो खुद को एक्सप्रेस करा है दैट इज कॉल्ड इट एज अ डोमिनेंट. एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सो we will take a monohybrid cross example. Here we can study Mendel's experiment of the monohybrid cross. मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने पैरेंटल क्रॉस किया था. मेंडल ने एक टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस किया. ओके, यहाँ पर मेंडल ने क्या लिया है? कैरेक्टर क्या स्टडी करें? मेंडल ने कैरेक्टर लिया है दैट इज अ हाइट ऑफ द स्टेम. हाइट ऑफ द स्टेम जो मेंडल ने स्टडी किया था वहाँ पर दो टाइप के ट्रेट हैं, दैट इज अ टॉल ट्रेट एंड अ ड्वार्फ ट्रेट. टॉल ट्रेट के लिए जो अलील है दैट इज अ कैपिटल टी. ड्वार्फ के लिए जो अलील है दैट इज अ स्मॉल टी. वी कैन सी इन दैट डायग्राम में आपको दिख रहा होगा. फिनोटिपिक टॉल है, जीनोटाइप इसका कैपिटल टी है और ड्वार्फ का जीनोटाइप स्मॉल टी. कैपिटल टी विल कोड फॉर हाइट ऑफ द प्लांट दैट इज टॉल प्लांट और ड्वार्फ का मीनिंग है स्मॉल प्लांट, ड्वार्फ हाइट आएगा. यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन हुआ कैपिटल टी, वहाँ से आया स्मॉल टी और दोनों का कॉम्बिनेशन हमको F1 जनरेशन में क्या मिला? F1 जनरेशन में हमको कैपिटल टी और स्मॉल टी आया. इफ़ अगर कैपिटल टी का मीनिंग क्या है कि ये प्लांट टॉल होना चाहिए, स्मॉल टी का मीनिंग क्या है कि प्लांट ड्वार्फ होना चाहिए, बट F1 जनरेशन के अंदर दोनों भी अलील एक कैरेक्टर के लिए, यहाँ पर एक कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ द स्टेम है. हाइट ऑफ द स्टेम के लिए दोनों भी अलील अलग अलग आने के बाद भी कौन से वाले अलील ने खुद को एक्सप्रेस किया है? कैपिटल टी अलील ने खुद को एक्सप्रेस किया और स्मॉल टी ने खुद को एक्सप्रेस नहीं किया. द अलील और अ जीन विच विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में हाइब्रिड फॉर्मेशन होने के बाद भी जो अलील खुद को एक्सप्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ डोमिनेंट अलील. मतलब यहाँ पर जो टॉल वाला प्लांट हमने लिया इसके अंदर कैपिटल टी वाला जो अलील है जो आपका F1 जनरेशन में, ये क्या है? डोमिनेंट है. और जो आपका स्मॉल टी है वो क्या है? रिसेसिव है. तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव देखें. नाउ वी कैन सी इन दैट, वही बोला है देखो, इट इज एन अलील दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इट्स ट्रेट इवन इन अ प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील. दूसरा अलील होने के बाद भी जो अलील और जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ डोमिनेंट अलील. हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि दोनों भी अलील अलग अलग हुए तो वो कंडीशन क्या होता है? हेट्रोजाइगस. एंड अल्टरनेटिवली अलील दैट एक्सप्रेस इन F1 इज कॉल्ड. तो अभी हमने एग्जांपल देखा, वहाँ पर हमने क्या देखा कि F1 जनरेशन में वो अलील खुद को एक्सप्रेस करा है. कैपिटल टी क्या है? मेंडल ने जो प्लांट स्टडी किया था हाइट ऑफ द स्टेम, इसके अंदर कैपिटल टी वाला जो अलील है, कैपिटल टी वाला जो प्लांट है दैट इज अ पेरेंट है, वो डोमिनेंट है. और स्मॉल टी दैट इज अ ड्वार्फ प्लांट वाला जो प्लांट है उसका पेरेंट्स क्या है? रिसेसिव है. अब रिसेसिव, व्हाट इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ रिसेसिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेसिव? This allele is not expressed in presence of alternative allele, that is in heterozygous condition. मतलब कि एक अलील हेट्रोजाइगस यानी कि एक कैरेक्टर के लिए दो अलग अलग अलील आने के बाद जो अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो अलील दूसरा अलील आने के बाद खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा डिप्लॉयड कंडीशन में, दैट अलील और अ जीन इज कॉल्ड इट एज अ रिसेसिव अलील. फिर ये एक्सप्रेस कब करेगा? इट विल एक्सप्रेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल अलील, यानी कि स्मॉल टी ड्वार्फ जो है तो वो होमोजाइगस रहेगा तो ही खुद को एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करेगा. यानी F1 हाइब्रिड अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर ये खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा. वही थर्ड पॉइंट दिए हैं, इट इज़ अ अलील दैट डज नॉट एक्सप्रेस इन F1 हाइब्रिड.
एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल में वही मोनोहाइब्रिड का ले रहा हूँ. सो नाउ वी कैन सी दैट यहाँ पर हमने देखा कैपिटल टी तो टॉल का है, बट ड्वार्फ प्लांट का क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी. अब देखो यहाँ पर F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आने के बाद भी, स्मॉल टी का जीन होने के बाद भी वो खुद के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है. सो रिसेसिव अलील का मीनिंग क्या है, द रिसेसिव अलील विल नॉट एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टर इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिव अलील. दूसरा कोई अलील होने के बाद रिसेसिव वाला पेरेंट या तो रिसेसिव वाला अलील खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा. तो ये खुद को एक्सप्रेस कब करेगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपका जो ड्वार्फ वाला प्लांट है ये स्मॉल टी यानी कि ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा. रिसेसिव अलील विल ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि अगर होमोजाइगस कंडीशन रहा तो ही वो खुद को एक्सप्रेस करेगा या तो एक्सप्रेस नहीं करेगा. ऐसे अलील को क्या बोलना है, रिसेसिव अलील बोलना है. ओके. Next definition we will study, that is phenotype. What is the meaning of phenotype? The external appearance of an individual for any trait is called phenotype of that trait. External means that is बाहर से अगर हम लोग किसी भी प्लांट को एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली, ओके, अगर हम लोग किसी भी इंडिविजुअल मीन्स लाइक अगर मैंने कोई प्लांट का एग्जांपल ले लिया या तो मैंने किसी एनिमल्स का एग्जांपल ले लिया, सो उस प्लांट या एनिमल्स के अंदर, लिविंग मैटर के अंदर एक्सटर्नली बाहर से हम लोग देखने के बाद जो भी हमको नेकेड आई से विजुअल है, लाइक कलर है, हाइट है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेट. वो उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप या तो ट्रेट होगा. लाइकवाइज अगर मैंने मेंडल ने स्टडी किए थे 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उनका अगर एग्जांपल ले लिया, सो नाउ वी कैन सी दैट मेंडल ने जो स्टडी किया 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर इन अ पी प्लांट. ऑल ऑफ यू नो द पी प्लांट वटाना सभी ने खाया है. सो उस प्लांट का मेंडल ने जब स्टडी किया था तो उनको कौन से कैरेक्टर दिखे थे, ट्रेट दिखे थे. सो दैट इज़ अ एक्सटर्नल फिनोटाइप, यानी क्या हो गया. सो जैसे कि अगर मैंने सीड ले लिया, वटाना सभी ने कहा, तो शेप ऑफ द सीड, तो शेप या तो फिर राउंड है या तो व्रिंकल है. देन सीड कलर दैट इज़ येलो है, ग्रीन कलर है. येलो कलर आपको पानी पूरी वाले के शॉप में दिख गया होगा, वहाँ पर आप लोग रगड़ा वगैरह जो भी खाते हो तो उसके अंदर आपको मिलेगा. देन इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड, पॉड का शेप है, पॉड का कलर है लाइक ग्रीन कलर है, येलो कलर है. फ्लावर का कलर है दैट इज़ अ पर्पल कलर है, वाइट कलर है. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ ट्रेट ऑफ दैट इज कॉल्ड इट एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेट. उस इंडिविजुअल का, उस प्लांट का वो क्या रहेगा, फिनोटाइप. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेट. देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोले, देखो, इट इज ऑब्जर्वेबल and determined by different combination of a allele. Likewise if I am taking a example, यहाँ पर example दिया है, example in a pea plant का example लिया मेंडल ने जो स्टडी किया था for the height of the stem. so मेंडल ने जो प्लांट स्टडी किया था उसके अंदर हाइट ऑफ स्टेम के अंदर 2 टाइप के हाइट थे, एक था टॉल हाइट एंड द सेकेंड वन इज अ ड्वार्फ हाइट. सो टॉल एक फिनोटाइप हो गया, सेकेंड वन इज अ ड्वार्फ हो गया. सो टॉल के लिए क्या है, कैपिटल टी आइदर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, और ड्वार्फ के लिए क्या है, स्मॉल टी. सो दैट इज अ कैरेक्टर्स के लिए जो भी आपका ट्रेट है जो कि हम लोग नेकेड आई से ऊपर से ऑब्जर्वेबल कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ फिनोटाइप ऑफ दैट ट्रेट. उसको क्या बोलना है, फिनोटाइप बोलना. देन सेकेंड डेफिनेशन वी विल स्टडी, दैट इज अ जीनोटाइप. जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज नॉट द सिमिलर, थोड़ा सा उनके अंदर डिफरेंस है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर ट्रेट. यानी कि अगर मैंने कोई भी एक ट्रेट ले लिया, सो उस ट्रेट के लिए लाइकवाइज अगर मैंने कोई टॉल प्लांट ले लिया, ओके, अगर मैंने समझो यहाँ पर एग्जांपल ले लिया कि टॉल प्लांट, सो टॉल प्लांट के अंदर क्या है, मेंडल ने जो स्टडी किया था टॉल प्लांट, वहाँ पर कैपिटल टी टॉल है, देन कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल है. ड्वार्फ प्लांट के अंदर स्मॉल टी. सो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मीन्स वहाँ पर अलील जो होता है, अलील का कॉम्बिनेशन कौन सा. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, देखो, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल कैरेक्टर और अ सेट ऑफ कैरेक्टर. या तो बहुत सारे कैरेक्टर एक जगह आ गए और उन सभी कैरेक्टर को हमको अलील बताना है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ जीनोटाइप.
और दैट इज कॉल्ड इट एज ए जीनोटाइप। या तो वो सिंगल कैरेक्टर के लिए बता दो या तो फिर वो सेट ऑफ कैरेक्टर। लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिया है सिंगल कैरेक्टर एग्जांपल इन अ पी प्लांट टॉल कैन बी जीनोटाइप कैपिटल टी टॉल। या तो फिर देखो अभी टॉल के अंदर दो वैरायटी आ गया। जब हम लोग फिनोटिपिकली अगर किसी प्लांट को ऊपर से देख रहे हो सो आप लोग उस प्लांट को ऊपर से देख के सिर्फ इतना ही बता सकते हो कि वो टॉल है, बट टॉल के अंदर जीनोटिपिकली आप लोग ये नहीं बता सकते। जीनोटिपिकली वी कांट से बाय अवर नेकेड आई, बिकॉज नेकेड आई से आपने ये बोल दिया कि ये प्लांट टॉल है, बट जब आप लोग जीनोटिपिकली बताओगे तो ऊपर से देख के नहीं बता सकते। सो जीनोटिपिकली हमको जीन के कॉन्स्टिट्यूशन तक, मतलब कि उसके अंदर उस कैरेक्टर के लिए, उस ट्रेड के लिए, यानी कि अगर वो प्लांट टॉल है हाइट ऑफ स्टेम के लिए उसका कैरेक्टर है, दैन उसका ट्रेड जो हो गया टॉल है, वो प्लांट हमको ऊपर से देखने में टॉल दिख रहा है, बट टॉल के अंदर तो दो वैरायटी है। सो वो कैपिटल टी यानी होमोजाइगस टॉल है, या वो कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस टॉल है। तो ये तो हमको नेकेड आई से ऊपर से देख के नहीं पता चलेगा। सो इसके लिए हमको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि वो कौन से टाइप का टॉल है वो हमको जीनोटिपिकली बताना पड़ेगा। दैट इज कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और ड्वार्फ के अंदर तो एक ही है स्मॉल टी। So that is called it as a genotype of that organism. Okay, next definition is homozygous, जो कि ऑलरेडी हमने बोला था। An individual possessing identical allele for a particular trait, identical मतलब similar, is called homozygous or a pure for that trait. Okay, so what is the meaning of that? यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इंडिविजुअल में एक कैरेक्टर के लिए, सिंगल ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, सिंगल ट्रेट के लिए, किसी भी एक ट्रेट के लिए दोनों भी अलील यानी दोनों भी जीन अगर सिमिलर है, आइडेंटिकल दैट इज अ सिमिलर है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ होमोजाइगस और प्योर प्लांट फॉर दैट ट्रेट। उस ट्रेट के लिए वो प्लांट क्या है, प्योर है या तो होमोजाइगस है। ओके, सॉलोफिक ले, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल ले लिया टॉल प्लांट, मेंडल ने जो प्लांट स्टडी किया था टॉल प्लांट, सो टॉल प्लांट के अंदर तो दो एग्जांपल हैं। ओके, अगर मैंने मेंडल का एग्जांपल ले लिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, सो नाउ वी कैन सी दैट दिस एग्जांपल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर मैंने फिनोटाइप फर्स्ट वाला अगर मैंने प्लांट ले लिया पेरेंटल जनरेशन टॉल, सो यहाँ पर टॉल क्या है, कैपिटल टी टॉल। देन सेकेंड वाला देखो यहाँ पर F1 जनरेशन में जब हमने टॉल और डॉफ को क्रॉस किया तो ये हमको कॉम्बिनेशन होके क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल। ये भी टॉल है फिनोटाइप और जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी टॉल हैं, बट इसके अंदर जो पेरेंट है उसके अंदर एक ही ट्रेट के लिए, यानी कि ट्रेट क्या है यहाँ पर, टॉल है। सो टॉल के लिए दोनों भी जीन या तो दोनों भी अलील क्या है, कैपिटल टी यानी कि सिमिलर अलील है, या तो आइदर मैंने ड्वार्फ भी ले लिया तो ड्वार्फ के लिए दोनों भी अलील क्या है, स्मॉल टी है। सो दिस टॉल एंड दिस ड्वार्फ, ये दोनों को क्या बोलना है हमको, दिस इज कॉल्ड इट एज अ होमोजाइगस एंड अ प्योर टॉल और होमोजाइगस एंड प्योर ड्वार्फ। मतलब एक कैरेक्टर के लिए, एक सिंगल ट्रेट के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों भी अलील, दोनों भी जीन अगर सिमिलर है, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ होमोजाइगस एंड प्योर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ होमोजाइगस एंड अ प्योर। ओके, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स वो देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी द सेकंड पॉइंट, होमोजाइगस ब्रीड ट्रू टू द ट्रेट एंड प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। जो आपके होमोजाइगस है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, तो वो जब गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो उस ट्रेट के लिए वो सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट का ही फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल अगर मैंने ह्यूमन बीइंग के अंदर फीमेल का एग्जांपल ले लिया। ओके, सो फीमेल के अंदर अगर मैंने एग्जांपल लिया फीमेल का, सो फीमेल के अंदर दोनों भी अलील्स कौन से होते हैं, ओके, सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं। सो फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 44 ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स एंड एक्स। सो इससे जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा फीमेल के अंदर, सो गैमेट जो 4 गैमेट फॉर्म होंगे सिंगल सेल से, मियोसिस से। सो 4 गैमेट्स में जो आपका सेक्स क्रोमोसोम जाएगा वो सभी के अंदर क्या जाएगा,
विल फॉर्मिंग अ सेम टाइप ऑफ गैमेट, मतलब जो भी इस सेल से गैमेट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, सिमिलर, बिकॉज यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम दोनों भी फीमेल के अंदर क्या है, एक्स एंड एक्स, मतलब फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो होमोजाइगस कंडीशन है। सो गैमेट जितना भी फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन होगा इन टर्म ऑफ होमोजाइगस। ये सिर्फ होमोजाइगस के लिए। लाइकवाइज अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, दैट इज अ हेट्रोजाइगस। सेम डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज है। एन इंडिविजुअल possessing contrasting allele for a particular trait is called heterozygous. What is the meaning of contrasting? Contrasting means opposite, मतलब एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए उस ऑर्गेनिज्म में दोनों भी अलील या तो दोनों भी जीन, ओके, बोथ द अलील्स या तो दोनों भी जीन कैसे है, सिमिलर टाइप के नहीं हैं, दोनों भी अलील कैसे है, कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट टाइप के हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजाइगस। एग्जाम्पल, मैंने अगर टॉल लिया तो टॉल के अंदर हमने दो वैरायटी देखा था जो मेंडल ने स्टडी किया था, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल। ओके, एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया, देखो यहाँ पर हमने मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड एग्जाम, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट वाला हमने प्लांट लिया है टॉल, क्या दैट इज़ होमोजाइगस टॉल लिया और इसको क्रॉस किया होमोजाइगस ड्वार्फ से। सो हमको F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला है वो टॉल मिला है, बट यहाँ पर ये कौन सा टॉल है, तो एक जो जीनोटाइप है वो क्या है, देखो एक जीनोटाइप है कैपिटल टी और उसका दूसरा जीनोटाइप है स्मॉल टी, मतलब दोनों भी जीनोटाइप, बोथ द जीनोटाइप एंड बोथ द अलील आर डिफरेंट, एक कैरेक्टर के लिए, एक ट्रेट के लिए, सिंगल ट्रेट के लिए उस ऑर्गेनिज्म में दोनों भी अलील्स अगर अपोजिट है, सो दैट ऑर्गेनिज्म और दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ हेट्रोजाइगस फॉर दैट ट्रेट। उस ट्रेट के लिए उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहना है, हेट्रोजाइगस कहना। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या दे, हेट्रोजाइगस डज नॉट ब्रीड ट्रू, वो उसको हम लोग ट्रू ब्रीडिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज ये क्या करेंगे, सो फॉर दैट ट्रेट प्रोड्यूस अ टू टाइप ऑफ गैमेट, क्योंकि वो एक सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो वो दो अलग अलग टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए उनको हम लोग को ट्रू नहीं बोलना। एग्जाम्पल अगर मैंने ह्यूमन का ही एग्जाम्पल ले लिया, सो जो आपके मेल है, मेल के अंदर जो आपके सेक्स क्रोमोसोम है, मेल के अंदर जो आपका सेक्स क्रोमोसोम है, ओके, मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है ह्यूमन के अंदर क्या होता है, एक्स एंड वाई होता है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो एक स्पर्म के अंदर एक्स जाएगा, दूसरे में वाई जाएगा। सो दोनों भी स्पर्म सिमिलर है क्या, नहीं है, जहाँ पर वाई जाएगा वो मेल का प्रोडक्शन करेगा, जहाँ पर एक्स जाएगा वो फीमेल का प्रोडक्शन करेगा। सो बोथ द गैमेट फॉर्म इन अ मेल, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर दोनों भी स्पर्म जो फॉर्म हो रहा है दे आर नॉट सिमिलर, बिकॉज मेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम कैसे है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, दोनों भी एक ट्रेट के लिए दोनों भी जो आपका कंडीशन है, अलील है, वो कैसे है, डिफरेंट टाइप है। लाइकवाइज अगर मैंने दूसरा एग्जांपल यहाँ पर ले लिया, सो सेकंड एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिया, सो लाइक कैपिटल टी स्मॉल टी, ओके, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर ये टॉल प्लांट है, बट ये टॉल प्लांट जब इसके गैमेट फॉर्म करेगा तो एक गैमेट कैपिटल टी वाला फॉर्म करेगा, तो दूसरा गैमेट ये स्मॉल टी, यानी कि दो अलग अलग टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको नॉट ट्रू ब्रीड ऐसे बोला गया है, बिकॉज ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट, और ये ट्रू ब्रीड कब बोलना है, जब वो सिमिलर टाइप यानी कि जब होमोजाइगस कंडीशन रहेगा तब बोलना। देन थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, देखो नाउ वी कैन सी द थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है। सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर ऐसे दिया है, दिस इज F1 generation hybrid capital T small t heterozygous individual is also called a hybrid। और ऐसे ही प्लांट को जिसके अंदर दोनों भी अलील F1 जनरेशन में दोनों भी अलील उस प्लांट के अंदर या तो उस एनिमल्स के अंदर अगर अलग अलग टाइप के जीन या तो अलील अगर अलग अलग टाइप के आ रहे हैं और उस ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ हाइब्रिड। इसको ही क्या बोलना है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ। Next definition we are seeing, that is pure line, which is also similar with a homozygous. An individual or a group of individual, an individual or a group of individual which is a homozygous or a true breeding for a one or more trait constitutes a pure line। इसका मीनिंग क्या हो रहा है, या तो सिंगल एनिमल है
या तो ग्रुप ऑफ एनिमल है, बहुत सारे एनिमल है पॉपुलेशन के अंदर, और उन सभी एनिमल के अंदर या तो सिंगल एनिमल्स के अंदर एक या तो एक से ज़्यादा ट्रेट, एक या तो एक से ज़्यादा ट्रेट प्योर लाइन है। प्योर लाइन मीन्स होमोजाइगस कंडीशन में एक या तो एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए जो अलील है या तो जीन है, वो दोनों भी जीन या तो दोनों भी अलील कैसे है, सिमिलर टाइप ऑफ अलील है। सो दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट एज दैट ऑर्गेनिज्म एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट एज अ प्योर लाइन और अ ओके। सो ऑल ऑफ यू क्लियर, सबको समझ रहा है मीनिंग कि यहाँ पर क्या है, एक या तो एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन है जहाँ पर उन सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक या तो एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए, एक या तो एक से ज़्यादा ट्रेट के लिए जो अलील होता है और जो जीन होता है वो दोनों भी अलील या दोनों भी जीन कैसे है, सिमिलर टाइप के यानी होमोजाइगस होते हैं। सो दिस ऑर्गेनिज्म एंड अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट एज अ प्योर लाइन। सेकेंड पॉइंट से यहाँ पर क्या दिए देखो, प्लांट विच ब्रीड्स ट्रू फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ट्रू फॉर पर्टिकुलर ट्रेट मीन्स दे आर फॉर्मिंग अ सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट। एग्जाम्पल अगर मैंने कोई एक प्लांट लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल अगर मैंने कोई प्लांट लिया लाइक कैपिटल टी एक पेरेंट है, उसके अंदर ये ट्रेट है, दैट इज़ अ टॉल प्लांट वाला ट्रेट है। सो अब ये जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तो दोनों भी गैमेट कैसे फॉर्म करेगा, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस ऑर्गेनिज्म फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड इट एज अ प्योर लाइन। सो इस ऑर्गेनिज्म को इस ट्रेट के लिए क्या कहना है, प्योर लाइन कहना, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को दोनों भी गैमेट सिमिलर फॉर्म हो रहा है तो इस टर्म को कहना है ट्रू ब्रीडिंग फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये इस ट्रेड के लिए यानी कि टॉल के लिए क्या है, ट्रू ब्रीडिंग है। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है देखो, थर्ड पॉइंट, इफ आई एम टेकिंग अ थर्ड पॉइंट, सो थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, इट इज़ अ descendant of a single homozygous parent produced after a self fertilization। मीन्स ये ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिज्म में या तो कौन से प्लांट में पॉसिबल है, सो वैसे प्लांट जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन कौन से प्लांट कर सकते हैं, या तो एनिमल, लाइक अगर मैंने एनिमल में एग्जांपल लिया तो हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, 11th में हमने देखा था वर्ड हर्माफ्रोडाइट, एग्जांपल अर्थवॉर्म है। देन बाइसेक्सुअल प्लांट, लाइक एग्जांपल अगर मैंने लिया तो चाइना रोज़ है, ये बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल मीन्स यहाँ पर एक फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ अ पॉलन ग्रेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज़ अ ओवरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल, ये पूरा का पूरा पार्ट एक ही फ्लावर में होता है। सो दिस फ्लावर और दिस प्लांट इज कॉल्ड इट एज अ बाइसेक्सुअल प्लांट। सो ऐसे जो प्लांट है या तो ऐसे जो एनिमल है इनके अंदर क्या होगा, लाइक अगर मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक प्लांट लिया, चाइना रोज़ का प्लांट लिया जो होमोजाइगस है। सो वो वही प्लांट का अगर एंथर है, सो एंथर में एंथसिस हुआ तो जो पॉलन ग्रेन फॉर्म होगा उसके अंदर पॉलन का जो फॉर्मेशन होगा उसके अंदर पॉलन के अंदर गैमेट कौन सा जाएगा, कैपिटल टी, बिकॉज वो टॉल प्लांट है, होमोजाइगस टॉल प्लांट है। देन उसी प्लांट का जो फ्लावर है उसके अंदर अगर गैमेट का फॉर्मेशन अगर ओवा का प्रोडक्शन हुआ ओवल के अंदर, सो यहाँ पर क्या होगा, सेम थिंग, जो ओवल का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल टी ही रहेगा। सो अभी ये दोनों एक जगह आ गए तो नया जो प्लांट फॉर्म होगा उसके सीड में भी क्या रहेगा, कैपिटल टी ही होगा। सो नॉर्मली यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन को हमने किससे क्रॉस किया है, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी से वो वहाँ पे ट्रांसफर है। सो दो द प्लांट एंड दो द एनिमल विच आर फॉर्म बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो गैमेट होगा अगर वो टॉल ही प्लांट है यानी कि एक ट्रेट के लिए दोनों भी अलील सिमिलर है तो वो गैमेट भी एक ही जैसे बनाएगा, और वो एक ही जैसे गैमेट जब एक जगह आएंगे तो उससे नया फॉर्म होने वाला जो प्लांट है या तो जो चिल्ड्रंस है, जो अगली प्रोजेनी है, वो भी क्या रहेगी, उस ट्रेट के लिए प्योर ही रहेगी। सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्योर लाइन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज मोनो। Next definition is monohybrid. Monohybrid, it is a heterozygous. Monohybrid, it is a heterozygous for one trait. Okay, whatever form वो क्या होगा, heterozygous form होगा. It is a heterozygous for one trait. It is produced from a cross between
टू प्योर पेरेंट, हमको क्या करना है, दो प्योर पेरेंट का क्रॉस करना है, डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, सो हमको क्रॉस करने के बाद कोई भी हेट्रोजाइगस प्लांट या तो हेट्रोजाइगस ट्रेट मिलना चाहिए, बट हम लोग जिनका क्रॉस करेंगे वो दोनों भी पेरेंट्स कैसे होने चाहिए, टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ओके, सो यहाँ पे देखो बहुत सारे डेफिनेशन अलग है। यहाँ पर एक डेफिनेशन आ रहा है, थोड़ा सा मीनिंग हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मीनिंग क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है और एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए दोनों भी अलील अलग अलग है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों अलील एक ही ऑर्गेनिज्म में आ गया, तो उसको क्या बोलना है, हेट्रोजाइगस। ओके, देन प्रोड्यूस फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन टू, हमको दो पेरेंट्स के अंदर क्रॉस करना, दोनों भी पेरेंट्स कैसे चाहिए, प्योर। प्योर मतलब कैसे, सो अगर मैंने टॉल प्लांट लिया है, सो टॉल में प्योर प्लांट क्या होगा, कैपिटल टी, यानी कि मुझे होमोजाइगस प्लांट से क्रॉस करना। सो हमको क्या है, दोनों भी पेरेंट्स को प्योर पेरेंट लेना है और उनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर है, बट एट ए टाइम हमको सिर्फ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पर सिंगल यानी सिंगल कैरेक्टर का स्टडी करना है, यानी कि हाइट ऑफ द स्टेम ले लिया तो हाइट ऑफ द स्टेम सिर्फ एक ही कैरेक्टर, वहाँ पर क्रॉस तो बहुत सारे कैरेक्टर में होगा बट हमको स्टडी सिर्फ एक ही कैरेक्टर का करना है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेयर, पेयर मतलब हमको ऑर्गेनिज्म जो चूज करना है दैट इज़ अ डिप्लॉयड नॉट अ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। हमको कौन सा ऑर्गेनिज्म लेना है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड यानी कि जिसके अंदर बॉडी के अंदर एक ट्रेट के लिए दो अलग अलग जीन होते हैं और अलील होते हैं, मतलब टू पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोजोम, यानी कि हर एक क्रोमोजोम के टू कॉपी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रॉस करना। अगर मैंने ये एग्जाम्पल वाइज अगर हमने स्टडी किया सो हमको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का स्टडी करना पड़ा, लाइक दैट। यहाँ पे अगर मैंने एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर क्या पेरेंट्स, कौन से पेरेंट्स हमने लिए हैं, दोनों भी पेरेंट्स देखो हमने प्योर पेरेंट लिए और कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। हमने पहले दो पेरेंट लिए, एक पेरेंट मैंने टॉल लिया है, दूसरे साइड हमने ड्वार्फ प्लांट लिया, यानी कि एक टॉल हाइट वाला प्लांट को ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट हाइट वाले प्लांट से हम लोग क्रॉस करें। अब यहाँ पर जो हमने टॉल वाला प्लांट लिया है, ये टॉल में तो दो वैरायटी होता है, एक कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल यानी प्योर टॉल, और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी वो भी एक टॉल होता है। बट यहाँ पर हमने कौन सा पेरेंट लिया है, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल को क्रॉस करें। एक साइड टॉल लिया और वो भी होमोजाइगस दैट इज अ प्योर पेरेंट लिया, और दूसरे साइड फिर ड्वार्फ लिया, सो ड्वार्फ उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, और कैपिटल टी के अपोजिट स्मॉल टी, और दोनों भी देखो अलील कैसे है, सिमिलर है, मतलब हमने होमोजाइगस प्लांट प्योर टॉल को प्योर ड्वार्फ से क्रॉस किया। सो वी विल गेट F1 जनरेशन में हमको क्या मिला, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, बट फिनोटिपिकली ये प्लांट टॉल है, बट ये कौन सा टॉल है, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ मोनोहाइब्रिड टॉल। मोनो मीन्स सिंगल, हाइब्रिड यानी क्या है, तो एक ऑर्गेनिज्म में एक ट्रेट के लिए दो अलग अलग अलील आ गई है, बट वो हेट्रोजाइगस प्लांट जो फॉर्म हुआ है। अब ये देखो, ये जो टॉल है कौन सा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, बट ये इसके जो पेरेंट्स हैं वो दोनों कैसे हैं, प्योर पेरेंट्स हैं। सो ऐसे क्रॉस करके अगर कोई भी हेट्रोजाइगस प्लांट या तो हेट्रोजाइगस एनिमल का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ मोनोहाइब्रिड। इसी वर्ड को इसी का मीनिंग क्या है, मोनोहाइब्रिड करके मीनिंग है। देन सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, देखो हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस इन अ क्रॉस बिटवीन प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ। जो हमने अभी देखा वही क्रॉस कि हमने हाइब्रिड टॉल प्रोड्यूस हुआ, कौन सा हाइब्रिड टॉल यानी क्या, तो हेट्रोजाइगस टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल प्रोड्यूस हुआ, बट उनके दोनों भी पेरेंट कैसे थे, तो हमने एक प्योर टॉल लिया यानी कैपिटल टी टॉल को प्योर ड्वार्फ यानी स्मॉल टी ड्वार्फ से क्रॉस किया एंड वी विल गेट अ कैपिटल टी स्मॉल टी F1 हाइब्रिड का फॉर्मेशन हुआ। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ अ हेट्रोजाइगोट फॉर अ सिंगल पेयर ऑफ अलील। अब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे वर्ड हेट्रोजाइगोट। हेट्रोजाइगोट मीन्स, हेटेरो मीन्स डिफरेंट, जाइगोट मीन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जाइगोट फॉर्म हुआ दो गैमेट से फॉर्म हुआ, बट दोनों भी गैमेट से जो अलील आए वो कैसे आए, अलग अलग टाइप के अलील आए। इसका मतलब ये आगे जाके जब गैमेट का फॉर्मेशन करेगा तभी भी ये क्या है, दो अलग अलग टाइप के गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। देन नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, दैट इज F1 जनरेशन। F1 generation. F1 generation is also called it as a first filial generation. इसका full form है first filial generation. Okay, what is the meaning of that?
इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑस्प्रीन प्रोड्यूस फ्रॉम पैरेंटल क्रॉस, पेरेंट का क्रॉस होने के बाद जो भी चिल्ड्रन का प्रोडक्शन होगा, सो ऑल द चिल्ड्रन इज कॉल्ड इट एज अ F1 जनरेशन. अल्टरनेटिवली, ओके, थर्ड पॉइंट क्या दिया, अल्टरनेटिवली इट इज अ फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम अ गिवन मीटिंग बिटवीन अ प्योर पेरेंट हैविंग अ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. मतलब अगर मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मैंने हमारा पेरेंट यानी एक जनरेशन हो गया, हमारे पेरेंट यानी हमारे फादर एंड मदर, ये हमारा एक जनरेशन है, और हम लोग यानी उनके दूसरे जनरेशन है. ओके, वो एक जनरेशन है और हमारा दूसरा जनरेशन है. सो हमारे पेरेंट में जब क्रॉस हो रहा है तो फिर हमारा प्रोडक्शन हो रहा है. सो हमारा जनरेशन यानी क्या हो जाएगा, सो वी ऑल आर ऑस्प्रीन, दैट इज कॉल्ड इट एज अ F1 जनरेशन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी कि पेरेंट के अंदर क्रॉस होने के बाद उनके चिल्ड्रंस का यानी ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलना है, F1 जनरेशन. ओके, अगर मैंने लाइकवाइज अगर एग्जांपल अगर मैंने लिया, अभी जस्ट हमने मोनोहाइब्रिड, यही एग्जांपल इसके लिए रहेगा. तो यहाँ पे देखो, अब ये हो गई जो कैपिटल टी टॉल प्लांट को हमने डॉफ प्लांट से क्रॉस किया, तो ये दोनों अगर पेरेंट है तो इनके जो चिल्ड्रंस आएंगे इनको क्या कहना है, दिस इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट फिलियल जनरेशन. आप देख सकते हो लेफ्ट साइड के बॉक्स में लिखा है फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको F1 भी लिखते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट फिलियल जनरेशन. सिर्फ वन टाइम क्रॉस करने के बाद जो चाइल्ड मिलेंगे दैट इज कॉल्ड इट एज अ first filial generation and F1 generation. Okay, now we will see the next definition, F2 generation. Okay, similar thing वैसे ही है, F2 generation is also called it as a second filial generation. How the F2 generation are formed, second generation progeny, that is F2 generation produced by selfing and interbreeding of a F1 generation offspring. यानी कि F1 जनरेशन में जो चाइल्ड मिला है उनके अंदर क्रॉस करो या तो उसका किसी और से क्रॉस करो, और फिर उससे जो हमको चिल्ड्रन मिलेंगे उनको क्या बोलना है, सेकेंड फिलियल जनरेशन. या तो F1 में जो प्रोजेनी मिला है उसको F1 से क्रॉस करो या तो किसी और से क्रॉस करो, और उसके आगे जो जनरेशन मिलेगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ सेकेंड फिलियल जनरेशन. सो प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी, F1 को क्रॉस करने के बाद उनके जो चिल्ड्रंस मिलेंगे दैट इज F2 प्रोजेनी. एग्जाम्पल अगर मैंने हमारा टी डायग्राम जो आप लोग निकालते हो उसका एग्जाम्पल लिया, सो ट्री डायग्राम में समझो अगर मैंने एग्जाम्पल लिया हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर. सो अगर हमारा ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर वहाँ से अगर हमने जनरेशन स्टडी किया तो हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यानी पेरेंट्स हो गए, दैन उनका क्रॉस हुआ तो उनके मदर और फादर का प्रोडक्शन हो रहा है, सो वो उनके चाइल्ड हो गए, सो वो हो गए F1 जनरेशन. पेरेंट में क्रॉस हुआ ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर और फिर प्रोडक्शन हुआ दैट इज कॉल्ड इट एज अ F1. फिर F1 के अंदर जब क्रॉसिंग हुआ तो फिर किसका प्रोडक्शन होगा, सो उसके आगे जो फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ F2 जनरेशन. यानी हमारा जनरेशन अगर हम लोग ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के जनरेशन से स्टार्ट करेंगे क्रॉसिंग तो हमारा जनरेशन हो गया, ओके, चिल्ड्रंस का जनरेशन है, हमारा जनरेशन हो गया दैट इज कॉल्ड इट एज अ F2 विच इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ सेकेंड फिलियल जनरेशन. Okay, next definition we will see that is a Punnett square and a checkerboard method. What is the meaning of that? It is a probability table representing different permutation and combination of fertilization between the gametes of opposing mating type. यानी कि मेल और फीमेल के बीच में जो भी गैमेट के अंदर क्रॉसिंग हो रहा है उस गैमेट को राइटिंग में लिखने के लिए जो भी टेबल का फॉर्मेशन हुआ दैट टेबल इज कॉल्ड इट एज अ पीरियड. ओके, जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंशन किया है उसी साइंटिस्ट का यहाँ पर नेम भी दे दिया. ओके, सो वो टेबल अगर मुझे दिखाना रहा तो आपको नॉर्मली दिस टेबल ये जो भी है ये नॉर्मली F2 जनरेशन के लिए यूज़ होता है. ओके, F2 जनरेशन. ओके, नॉर्मली अगर मैंने देखो अगर मैंने ये ऊपर वाला F1 जनरेशन लिया, सो हमने पेरेंट्स के अंदर जब क्रॉसिंग किया दैट इज़ अ राउंडेड येलो सीड का जब मैंने व्रिंकल ग्रीन सीड से क्रॉस किया सो वी गेट अ F1 जनरेशन. अब F1 जनरेशन का जब हमने इसका गैमेट लिखा सो गैमेट का कॉम्बिनेशन देखो कितने हैं, बहुत सारे हैं. एक पर्सन में ही 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. मतलब जब हम लोग 2 पर्सन का क्रॉसिंग करेंगे तो हमको कॉम्बिनेशन में बहुत सारी चिल्ड्रंस मिलेंगे और इनको एक पेपर में साइमल्टेनियसली एक के बाद एक लिखना पॉसिबिलिटी नहीं है. सो इसीलिए ये 2 साइंटिस्ट ने
मेल और फीमेल अपोजिट गैमेट का क्रॉसिंग करने के बाद जो चिल्ड्रन का प्रोडक्शन हो रहा है उसको टेबल वाइज थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में और थोड़ा सा इजी वे में फॉर्म करने के लिए ये टेबल का इन्वेंशन किया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्यूनेट स्क्वायर एंड चेकर बोर्ड मेथड। जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया उसका ही इसको नेम दिया। और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमको ऊपर के साइड में एक साइड में हमने मेल गैमेट लिखा है और फिर मेल के जितने गैमेट है वो उस साइड लिख दिए। देन नीचे की साइड में लेफ्ट साइड में हमने फीमेल गैमेट लिखा और फीमेल के गैमेट में वहाँ पर फीमेल के अलग अलग गैमेट लिखे। फिर उन दोनों को कॉम्बिनेशन होकर चिल्ड्रन के पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है वो हमको इस टेबल में रिप्रेजेंट करना। सो ये अगर F2 जनरेशन लिया और F1 लिया, सो F1 का जब प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे तो यहाँ पर एक एक ही गैमेट है इसीलिए वन टाइम लिख दिया तो ठीक है। बट ये जो चेकर बोर्ड मेथड है इट इज़ अ इजीएस्ट वे, उस वे में ये थोड़ा सा इजीएस्ट वे रहेगा उसको शो करने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ प्यूनेट स्क्वायर एंड चेकर बोर्ड मेथड। डन। नेक्स्ट यहाँ पर है डेफिनेशन, दैट इज अ homologous chromosome. As the name suggests, homo means similar than chromosome. So what is the meaning of homologous chromosome? देखो मीनिंग क्या दिया है, morphologically, genetically and structurally essentially identical chromosome. Identical means similar chromosome present in a diploid cell, not a haploid. यहाँ पर diploid word बहुत ही important है, is called homologous chromosome. Such a chromosome synapse means इनका क्रॉसिंग और होता है during a meiosis. So what is the meaning of morphologically, genetically and structurally? So if I am taking a example of a human, हमने लास्ट वाला जो एग्जाम्पल लिया था, वैसे अगर मैंने ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लिया तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, वी आर ऑल्सो कॉल इट एज अ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 23 पेयर ऑफ? सो वी हैव अ ईच एंड एवरी क्रोमोसोम। अगर मैंने टाइप ऑफ क्रोमोसोम लिया तो हमारे पास हमारे बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम इज केम फ्रॉम अवर फादर विद द हेल्प ऑफ स्पर्म एंड 23 क्रोमोसोम हमारे मदर से आया है, वो एक से आया। और इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या हुआ, जाइगोट का प्रोडक्शन हुआ सिंगल सेल, और उससे फिर क्या हुआ, सब सेल में 46 माइटोसिस होके सेल क्रोमोसोम गए। सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का मीनिंग क्या है, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का हमारे पास दो दो कॉपी है। मतलब कि क्रोमोसोम नंबर 1 2 कॉपी है, क्रोमोसोम नंबर 2 कॉपी है, देन क्रोमोसोम नंबर 3। और ये सभी क्रोमोसोम नंबर 1 2 कॉपी यानी क्या है, ये एक कॉपी हमारे मदर से आया है, एक कॉपी हमारे फादर से आया। और दोनों भी क्रोमोसोम अगर हमने मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि अगर मैंने ऊपर से देखा तो उसका कलर है, उसका शेप है, तो कलर वाइज शेप वाइज दोनों भी क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं। ओके, सो स्ट्रक्चरली यानी कि उसका स्ट्रक्चर है, दैन मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उसका कलर है, साइज है, शेप है, वो पूरा का पूरा दोनों क्रोमोसोम का सिमिलर है। प्लस जेनेटिकली भी वो क्रोमोसोम सिमिलर होना चाहिए। मतलब ऊपर से खाली सेम दिख रहा है मतलब आइडेंटिकल क्रोमोसोम है या होमोलोगस है, ऐसा नहीं है। जेनेटिकली मतलब क्या है, वी नो दैट कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है। सो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्ट, दैट इज कॉल्ड इट एज अ डीएनए के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, और वो क्या होता है, जीन होता है। सो क्रोमोसोम नंबर 1 में जितने जीन हैं वही सब जीन क्रोमोसोम नंबर 2 में भी होने चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ जेनेटिकली ऑल्सो सिमिलर होना चाहिए। सो बोथ द क्रोमोसोम if they are morphologically, size, shape and color, genetically मतलब एक जितना जीन 1 में है उतना ही दूसरे वाले क्रोमोसोम में भी होना चाहिए, और स्ट्रक्चरली भी अगर वो सेम है, सो ऐसे डिप्लॉयड सेल के अंदर ये दोनों भी क्रोमोसोम जो सिमिलर होते हैं, एक ही सेल में डिप्लॉयड सेल में जो दोनों भी क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, दिस ऑल क्रोमोसोम आर कॉल्ड इट एज अ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऐसे दोनों भी क्रोमोसोम को क्या बोलना है, होमोलोगस यानी सिमिलर क्रोमोसोम बोलना है। देन second point, such a chromosome synapse during meiosis, we know that कि meiosis के टाइम इनमें क्या होता है, क्रॉसिंग और होता है, और फिर उससे नया कॉम्बिनेशन होके चिल्ड्रंस में प्रोडक्शन होता है। देन द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अ हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जैसे था वैसे ही हेट्रोजाइगस है। What is the meaning of heterozygous? An individual possessing contrasting allele for a particular, okay, individual possessing contrasting allele for a particular trait is called heterozygous.
Okay, so definition is an individual possessing contrasting allele of a particular trait. ये हमने जो होमोजाइगस डेफिनेशन देखा था उससे ही पूरा सिमिलर है. होमोजाइगस डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, एक ट्रेट के लिए उस ऑर्गेनिज्म में दोनों भी अलील्स अगर सिमिलर है दैट इज कॉल्ड इट एज अ होमोजाइगस. इसके अपोजिट अगर एक ट्रेट के लिए एक ऑर्गेनिज्म में बोथ द अलील्स आर डिफरेंट, अगर दोनों भी अलील्स कैसे है, अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ हेटेरोजाइगस. लाइकवाइज अगर मैंने टॉल प्लांट लिया तो हाइब्रिड टॉल प्लांट, F1 जनरेशन में जो हाइब्रिड टॉल प्लांट होता है दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जो टॉल होता है दैट इज कॉल्ड इट एज अ हेटेरोजाइगस. देन सेकंड पॉइंट क्या दिया है, हेटेरोजाइगस डज नॉट प्रोड्यूस ट्रू ब्रीड अ ट्रू ट्रेट एंड प्रोड्यूस अ टू टाइप ऑफ गैमेट. ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्म करते हैं. लाइकवाइज अगर मैंने मेल का अगर सेक्स क्रोमोसोम का एग्जांपल लिया तो मेल के अंदर दोनों भी सेक्स क्रोमोसोम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक एक्स है और दूसरा वाई है, और ये गैमेट का प्रोडक्शन जब करेंगे, ओके अगर मैंने एग्जांपल लिया और ये जब भी गैमेट का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एक के अंदर एक्स जाएगा क्रोमोसोम और दूसरे स्पर्म के अंदर वाई जाएगा. लाइकवाइज अगर मैंने हाइब्रिड यहाँ पे जो एग्जांपल दिया अगर हमने वो देखा दैट इज़ एग्जांपल F1 जनरेशन हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी. सो अगर मैंने देखो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर इंडिविजुअल लिया तो ये दो अलग अलग टाइप के गैमेट फॉर्म करेगा, एक गैमेट के अंदर कैपिटल टी दूसरे के अंदर स्मॉल टी. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ हेटेरोजाइगस. Okay, so this is called it as a heterozygous. Then next definition is a back cross. Simple है ये भी. What is the meaning of back cross? Back cross name में ही दिया है back cross. Back means हमको पीछे से जाके क्रॉस करना. What is the meaning of back cross? Back cross is a when a cross of a F1 progeny with any ऑफ देयर पेरेंट्स. मीन्स हमको क्या करना है, जो चिल्ड्रंस हैं उस चिल्ड्रंस को उसके पेरेंट्स से ही क्रॉस करना है, चिल्ड्रंस को उसके पेरेंट्स से क्रॉस करना है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ बैक क्रॉस. लाइकवाइज अगर मैंने एग्जांपल लिया देन बैक क्रॉस के अंदर टाइप है टेस्ट क्रॉस. ओके, टेस्ट क्रॉस मीन्स व्हेन F1 प्रोजेनी इज अ क्रॉस बैक with its homozygous recessive parent is called it as a test cross. Okay, so हम लोग पहले बैक क्रॉस देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस. सपोज़ मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया, मैंने अगर मैंने कोई एग्ज़ाम्पल लिया यहाँ पर आई एम क्रॉसिंग कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया है, इसका मैंने क्रॉस किया है स्मॉल टी दैट इज़ अ होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से मैंने क्रॉस किया. ओके, मैं यहाँ पर फिनोटाइप वगैरह लिखना होता है बट मैं जस्ट शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, वहाँ नहीं लिख रहा हूँ. सो मैंने कैपिटल टी का गैमेट फॉर्म होगा कैपिटल टी यहाँ पर स्मॉल टी, और इससे जो क्रॉस होने के बाद जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये हो गया F1 फॉर्म हुआ. अब मैं क्या करूँगा, जो F1 में हमको मिला है चिल्ड्रन, इसको मैं इसके पेरेंट से ही क्रॉस करूँगा. तो इसके दो पेरेंट है, एक है कैपिटल टी और दूसरा है यहाँ पर कैपिटल टी और दूसरे साइड है स्मॉल टी. सो दोनों पेरेंट्स में से ओके मैंने F1 हाइब्रिड जो फॉर्म हुआ है, ओके हमारे पास जो F1 हाइब्रिड फॉर्म हुआ है, सो इस F1 हाइब्रिड में मैंने क्या किया, आइदर दोनों में से किसी भी एक पेरेंट से इसका क्रॉस किया, दैट इज कॉल्ड इट एज अ बैक क्रॉस. सो अब देखो बैक क्रॉस अगर मैंने डोमिनेंट वाले से क्रॉस किया तो वो तो बैक क्रॉस ही नेम रहेगा, या तो उसको नेम देना है डोमिनेंट बैक क्रॉस. देन अगर मैंने F1 हाइब्रिड को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया, ये वाला रिसेसिव है ना, दोनों भी कैसे है रिसेसिव है, सो रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस किया, सो ऐसे बैक क्रॉस को बोलना है टेस्ट क्रॉस. ओके, सो टेस्ट क्रॉस यानी क्या है, सो व्हेन F1 प्रोजेनी इज क्रॉस बैक विथ इट्स रिसेसिव पेरेंट, अगर F1 प्रोजेनी को उसके रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करोगे सो उसको बोलना है टेस्ट क्रॉस. बैक क्रॉस का ही दूसरा टाइप टेस्ट क्रॉस. और बैक क्रॉस यानी क्या है, बैक क्रॉस इज सिंपली मीन्स F1 प्रोजेनी इज क्रॉस बैक विथ इट्स वन ऑफ द पेरेंट. F1 प्रोजेनी को उसके किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कर दिया यानी कि बैक क्रॉस, और अगर रिसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस किया तो उसको क्या बोलना है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ टेस्ट क्रॉस. देन next definition is a phenotypic ratio. What is the meaning of phenotypic ratio? The ratio of offspring produced in F2 and subsequent generation with respect to their physical appearance. मतलब कि हमने जस्ट मॉर्फोलॉजिकली हमने क्रॉसिंग किया
पेरेंट्स के अंदर, फिर उससे हमको F1 मिला। F1 के अंदर क्रॉस करने के बाद जस्ट हमने जो भी पेरेंट्स मिले हैं, जो भी हमको चिल्ड्रंस मिले हैं F2 जनरेशन में, उनके अंदर जस्ट मैंने ऊपर से देखा वो ट्रेट को और फिर उसको लिख दिया ऊपर से फिनोटिपिकली कितने टॉल मिले, कितने ड्वार्फ मिले, दैट इज कॉल्ड इट एज अ फिनोटिपिक रेशो। सो लाइकवाइज अगर मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके, सो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लिया, इफ़ आई एम टेकिंग दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जांपल, यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सो यहाँ पर फिनोटाइप कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सो हमने लिया है कैपिटल टी टॉल, प्योर टॉल प्लांट, इफ़ इट इज़ क्रॉस विद अ प्योर डॉफ प्लांट, दैट इज स्मॉल टी रिसेसिव वाले प्लांट से मैंने उसको क्रॉस किया। सो कॉम्बिनेशन होके हमको F1 जनरेशन क्या मिला, टॉल प्लांट। बट इसका टी फिनोटाइप क्या है, जस्ट मैंने ऊपर से देखा तो वो जब मैंने सॉ किया उस सीड को, जो भी सीड हमको मिला है पेरेंट से क्रॉस करने के बाद, उसको जब हमने ज़मीन में डाला तो उससे जो प्लांट आए वो टॉल हाइट दिखा रहा है। सो वो फिनोटिपिकली क्या हो गया, टॉल। देन मैंने टॉल जो प्लांट मिला ये F1 जनरेशन, इसका सेल्फिंग किया, यानी उनसे ही क्रॉस किया, फिर हमने F2 जनरेशन का ये चार्ट बनाया। नाउ यू कैन सी दैट दिस चार्ट, ओके। सो इस चार्ट में मेल के गैमेट लिख दिए, फीमेल के गैमेट लिख दिए और उनका क्रॉस किया, तो हमको कॉम्बिनेशन में कितने मिले, देखो पेरेंट्स कितने मिले, कैपिटल टी, फर्स्ट वाला जो मिला कैपिटल टी, तो इसमें दोनों भी कैपिटल टी है इसलिए टॉल दे रहा है। देन कैपिटल टी टॉल, वो भी टॉल दे रहा है बिकॉज टी जो है कैपिटल टी ये डोमिनेंट है। देन थर्ड वाला प्लांट भी टॉल है, और मीन्स ये देखो ये हम लोग जीनोटाइप देख के नहीं बोल रहे हैं। सो हमने क्या किया, ये चारों भी जो सीड मिले हैं हमको क्रॉस करने के बाद, इसको मैंने फिर सॉइल के अंदर मेंडल ने सॉ किया है, लगाया है, और फिर उसको प्लांटेशन करने के बाद उसका हाइट टॉल आया, और फिर उसके ऊपर से लिखा कि कितने टॉल मिले, तो टोटल 4 में से 3 टॉल मिले, और ड्वार्फ कितने मिले, 1। सो फिनोटिपिक रेशो क्या हो गया, सो फिनोटिपिक रेशो इज 3:1, टॉल 3 एंड 1 ड्वार्फ, ओके। फिनोटिपिक रेशो क्या होगा, सो दैट इज टॉल 3 एंड ड्वार्फ 1, ऐसे करके आपका फिनोटिपिक रेशो आ जाएगा, जो कि हमको जस्ट फिजिकल अपीयरेंस देख के बताना है। फिनोटिपिक रेशो हमको पूरा का पूरा फिजिकल अपीयरेंस देख के बनाना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज जीनोटिपिक रेशो। Next definition is genotypic ratio. It is a ratio of offspring produced in F2 and subsequent generation with respect to their genetic makeup. यहाँ पर हमको फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बताना है, हमको जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट मिले हैं हमको इसके जेनेटिक कंस्टिट्यूशन से बताना है कि वेदर इट इज़ टॉल और वेदर इट इज़ ड्वार्फ। बट टॉल के अंदर भी देखो 2 वैरायटी, जैसे कि अगर मैंने सेम एग्जांपल हमने जो लास्ट टाइम देखा था, अगर मैंने वही एग्जांपल लिया, लाइकवाइज अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, सो नाउ वी कैन सी दैट इन F2 जनरेशन यहाँ पर 4 अलग अलग टाइप के प्लांट है। पहला वाला जो प्लांट है ये भी टॉल है, सेकंड वाला भी टॉल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला वाला जो है ये कैपिटल टी, अब ये हमको फिजिकल अपीयरेंस यानी कि जस्ट मॉर्फोलॉजिकली ऊपर से नेकेड आई से देखा तो हमको पता लग जाएगा क्या, नहीं, तो हमको इसके लिए क्या है, उसके जीनोटाइप को स्टडी करना पड़ेगा। सो व्हेन वी आर स्टडिंग इन टर्म ऑफ अ जीनोटाइप एंड देन वी आर सेइंग दैट इट इज टॉल एंड विच टाइप ऑफ टॉल। सो जो पहला वाला टॉल है कैपिटल टी टॉल, ये प्योर टॉल या तो होमोजाइगस टॉल माना जाएगा। सो ये हमको कितना मिल गया, फिर ये इस रेशो में 1। देन कैपिटल टी ये जीनोटाइप वाले कितने हैं, तो 1 and 2 2 है। सो ये हो गया हेट्रोजाइगस टॉल, सो हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट मिले 2, और फिर लास्ट वाला हो गया होमोजाइगस ड्वार्फ। सो ये हो गया, ये जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो देखो डिफरेंट हो गया। फिनोटिपिक रेशो में हमने जो 3:1 रेशो बोला था वो अभी चेंज हो गया 1:2:1। राइटिंग में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सो लाइकवाइज देखो यहाँ पे दिया है, राइटिंग में अगर मैंने लिखा तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, सो 1 कौन सा टॉल है, कैपिटल टी टॉल यानी क्या है, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस, और या तो इसको प्योर हम लोग बोलेंगे। देन कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है, ये से ऐसे कितने मिले 2, तो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इट एज अ हेट्रोजाइगस टॉल।
हेट्रो यानी दो डिफरेंट टाइप के एलील, और लास्ट वाला स्मॉल टी ड्वार्फ। सो रेशो क्या हो गया, जीनोटिपिक रेशो हो गया 1:2:1। सो सेम प्लांट का सेम फेज F2 जनरेशन का जो आपका फिनोटिपिक रेशो 3:1 आया था वो जीनोटिपिक रेशो में चेंज हो जाएगा, बिकॉज जीनोटिपिकली जो टॉल प्लांट है वो अलग अलग टाइप के यानी होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है वो भी हमको बताना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड इट एज। सो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अलील के फॉर्म में अगर लिख रहे हो तो उसको बोलना है जेनेटिक रेशो, और अगर हम लोग जस्ट ऊपर से देख के लिख रहे हैं कि वो टॉल है या ड्वार्फ है, फिनोटिपिकली लिख रहे हैं तो उसको बोलना है फिनोटिपिक रेशो। डन।